Hello students, now we are going to solve question number 19 of non-profit organization from the book DK Goel. Now see the question. The following is the receipt and payment account of the Rajdhani Club year ended 31st March 2015. So income and expense of Rajdhani Club, ठीक है, राजधानी क्लब का है, ये मैच कर लेना। रिसिप्ट का अमाउंट आ रहा है और पेमेंट का जो टोटल आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है 1,38,400। क्लियर है, दोनों साइड का रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो टोटल है वो 1,38,000 आ रहा है। क्लियर, चलिए मैच हो गया। नाउ लेट्स सी, देयर इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द पॉइंट which require adjustment. So first of all mark the subscription, okay, subscription. Then on the payment side, staff salary and furniture purchase, clear है। and in the last, sports equipment is 20,000 rupees, ठीक है, sports equipment is 20,000। तो इन 4 टर्म्स को आपने मार्क कर लिया होगा, इसका रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि आप इसको एडजस्ट करना है। और साथ ही साथ तुरंत जो है 3 अकाउंट्स हमको बना लेना होगा, इनकम एंड एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। टू बैलेंस BD 1/4/2014, 1/4/2014 ये रहा 1/4/2014। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश, so it will record in the asset side cash in hand, cash in hand, cash in deposit account and cash in current account। 4,000, 16,000 and 52,000, 16,000 and 5,200, सॉरी, हो गया। द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन, द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द इनकम एंड बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 80,000। ओके, इंट्रेंस सॉरी सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट करना है। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2014। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2014 का, ठीक है, 31 मार्च 2014 का आउटस्टैंडिंग है। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, सो वी सब्ट्रैक्ट इट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड 31 मार्च 2014 का, एंड द अमाउंट इज 7,000। ठीक, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,600, और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2015 को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 5,600। सो इट विल बी एड बैक टू द मेन सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,600, 31 March 2015। Then advance subscription 31 March 2014, okay, 31 March 2014, the subscription received in advance on 31 March 2014 is related to 1 April 2014 to 31 March 2015, ठीक है। This advance subscription of 2,000 is related to this year, current year, so we will add back, add advance subscription, advance subscription, and amount is 2,000, and less
Also, there is the advance subscription on 31st March 2015 is 2500. Clear? And if you receive an advance on 31st March 2015, it means on the last date of this year, it means that subscription is related to the next year, not related to this current year. So we will subtract it. Advance subscription 2500. Okay. Then total of this will be 80,000 minus 7,000 plus 5,600 plus 2,000 minus 5,500 78100 78100. ठीक है. Now see, outstanding subscription on 31st March 2014. Okay, outstanding subscription of 7,000 on 31st March 2014. So it will be carry forward to the 1 April 2014 and it will become an asset on the opening balance sheet. So outstanding subscription on 31st March 2014 will be 7,000. Clear? Now the outstanding subscription on the last date 31st March 15 is 5,600 and it will become an asset of a closing balance sheet. Outstanding subscription 31st March 2015 will be 5,600. Clear? The next is advance subscription. एडवांस सब्सक्रिप्शन ये 2,000 रुपये कहाँ का है? एडवांस सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2014 का. ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है ये. क्लियर है? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है. सो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है तो इट विल गोज इनटू द ओपनिंग बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 and this is the closing subscription which related to the closing balance sheet. Advance subscription 2,500. Then to entrance fees by entrance fees 12,000. To life membership fees. अब life membership fees will be added in the capital fund. Add surplus. Add life membership fees. And the life membership fees is 15,000. ओके. लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में ऐड होगा कैपिटल फंड में. टू न्यूज़पेपर सेल्स बाय न्यूज़पेपर सेल्स 200. by canteen collection 4,400. To interest on the deposit by interest on deposit 1,600. ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना. इंट्रेंस फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, न्यूज़पेपर, कैंटीन कलेक्शन, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. क्लियर है? नाउ come to the payment side by staff salary. So to salary is 35,400. In the inner column we write 35,400. Now come to the adjustment part. Salary outstanding is 1,200 on 31st March 2014. On 31st March 2014 salary outstanding is 1,200. Okay, so this salary is not related to this year, current year. This is the previous year salary and hence we deduct it from the salary part.
लेस outstanding salary on 31st March 14 will be 1200, and then on 31st March 2015 there is the outstanding salary of 1800. So this is the current year. We will add outstanding salary on 31st March 15 will be 1800. 1800 यहाँ हम ऐड कर देंगे और इसका टोटल आ जाएगा 35,400 माइनस 1200 प्लस 1800, 36,000. Clear? 36,000. Now this is the opening salary, outstanding salary of previous year, and hence it will come under the liability side of opening balance sheet. Outstanding salary 1200 and outstanding salary of the closing figure will be come here, outstanding salary 1800. आई बात समझ में? क्यों ऐसा कैसे हो रहा है फिर से एक बार समझा देते हैं कि 31 मार्च 2014 है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है लास्ट ईयर का, यानी कि 13-14 का सैलरी है. अब ये 31 मार्च 2014 को सैलरी ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 1 अप्रैल 2014 को, और जब 1 अप्रैल 2014 को कैरी होगी और चूंकि ये आउटस्टैंडिंग है यानी कि इट इज अ लाइबिलिटी एंड इट विल कम अंडर द लाइबिलिटी कॉलम ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड दिस इज द outstanding of this current year. Clear है? This current year. So on 31st March when we prepare this income and expense account, we get to know that there is a outstanding salary of 1800. So it will come under the liability side of the closing balance sheet, outstanding salary 1800, and since it is related to the current year, this liability is related to the current year, we add back it into the main salary. So 36,000 तो कैलकुलेट हो गया ना 36,000. ठीक है, इट मीन्स कि इसका हमने सारा सब वो कर लिया है. नाउ कैंटीन एक्सपेंसेस टू कैंटीन एक्सपेंसेस 3500 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 800 by insurance 200,000 to telephone expense 4,800 by furniture purchase. क्लियर? बाई फर्नीचर परचेज में एक बात ध्यान रखिएगा कि एडजस्टमेंट करना है. और कोई पॉइंट दिया है क्या? हाँ दिया है, नीचे दिया है 4th नंबर में फर्नीचर दिया है, और लास्ट पेज पे दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट बाय 30%. नाउ लेट्स सी, फर्नीचर इज द एसेट एंड हेंस इट विल कम अंडर द बैलेंस शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, फर्नीचर परचेज है, इट इज द फर्नीचर परचेज, बट देयर इज द फर्नीचर इन द 4th पॉइंट ऑफ द एडजस्टमेंट. Furniture on the 31st March 2014 there is the furniture of 10,000 is given. Okay, तो 31st March 2014 furniture purchase किया गया and it will carry forward to the next year on 1st April 2014. It means that on 1st April 2014 there is the furniture of 10,000 rupees. Opening figure है 10,000 rupees. Clear? Now during this year यानी कि up to the 31st March 2014 we purchase a furniture of rupees 15,000. it means कि ये तो फर्नीचर रहेगा ही रहेगा. so we write it here, फर्नीचर कितना 15,000 सॉरी 10,000, फर्नीचर 10,000, यानी कि 10,000 का फर्नीचर तो था ही था, बट और आपने
एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा है कितने का, 15,000 का. सो वी विल ऐड बैक, ऐड परचेज फर्नीचर 15,000 and the total amount of furniture we get is 25,000. ठीक है, 25,000. Now we have to charge 20% depreciation on the furniture. Clear है? We have to charge 20% depreciation on furniture. So 20%, and there is no any date is given that this furniture is purchased on, this furniture of 15,000 is purchased on July or on August or September. Nothing is given, no date is given. So we simply charge 20% depreciation on the 25,000 rupees. ठीक है, we charge 20% depreciation on 25,000 rupees. 25,000 का 20%, 5,000. Clear है? We charge 5,000 depreciation and the amount we get 20,000. Clear है? 20,000. So here we write to depreciation of furniture 5,000. The next point is furniture हो गया. Next है investment purchase. There is also investment purchase. Okay. Is anything given? No. Nothing is given related to the investment. It means it is written in the opening closing balance sheet. Investment purchase, सिंपल इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है तो आप यहाँ पे एडजस्ट राइट कर दो, क्योंकि ये एसेट होता है. इन्वेस्टमेंट परचेज 15,000. ठीक. एनी अदर थिंग्स? हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे बच गया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का है? 20,000 का है ऑन 31 मार्च 2014. सो इट विल कम अंडर द ओपनिंग बैलेंस शीट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000. और अगर ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग भी होगा, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये स्पोर्ट इक्विपमेंट हमने सेल कर दिया कि नहीं किया. तो हम यही मान के चलेंगे कि ये स्पोर्ट इक्विपमेंट अभी तक हमारे पास है. सो इट विल ऑल्सो रिटन हियर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 ना, 20,000. ऑल्सो वी हैव टू चार्ज 30% डेप्रिसिएशन. क्लियर है? 30% डेप्रिसिएशन. तो लेस डेप्रिसिएशन एट 30%, इट मीन्स 6,000 एंड 14,000. इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 14,000. ओके, इसकी जो है 14,000 फाइनल वैल्यू हो जाएगी. अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने 6,000 चार्ज किया, तो दिस इज द एक्सपेंस. सो इट विल बी रिटन हियर टू डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 6,000. क्लियर है? नाउ द लास्ट पॉइंट इज बाय बैलेंस CD. बाय बैलेंस CD, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश. तो कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट एंड कैश इन करंट अकाउंट. क्लियर? एंड द अमाउंट इज 6,700, 20,000 एंड सॉरी 6,700 है ये, 6,700, 20,000 एंड 4,200. 4,200. Clear? So all the points is completed. Now इसका अब हम टोटल करते हैं. तो 7,8,100 प्लस 12,200 9,6,300 9,6,300 minus 36,000 3,500 800
2000, 4800, 5000, 38200, 38200, 96300, 2 सरप्लस। क्लियर है? अब सरप्लस को हम यहां लिख देंगे 38200। सरप्लस देख लो आ रहा है, सरप्लस 38200। ठीक है, सरप्लस तो सही है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को चेक करो। 4000, 16000, 5200, 7000, 10,000, 17,000 और 20,000। 62200, 62200 माइनस किया 2000 और 1200, माइनस 2000, 59,000, 59,000 and it is the opening capital fund. It means कि it is the capital of the last year. ठीक है, it is the capital of last year. Balancing figure. Clear है? Now in the capital column we write 59,000. So opening capital आ रहा है 59,000. It is right. So 59,000 plus 38200 plus 15,000. Total 112200. 112200. 112200। ठीक है, इन तीनों का टोटल किया तो ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो प्लस 2500 प्लस 1800, टोटल 116500। 116500। अब इसको ऐड करें तो 5600 प्लस 20,000, 15,000, 14,000, 6,700, 20,000। गलत आ रहा है। 5,600, 20,000, 15,000, 14,000, 6,700, कुछ गलत आ रहा है इसमें। कुछ पॉइंट छूट रहा है, क्या लग रहा है इसमें? इन्वेस्टमेंट परचेज, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट परचेज का अमाउंट गलत लिखा है मैंने। इन्वेस्टमेंट परचेज जो है वो 46,000 है, मैंने 15,000 लिख लिया है। 46,000, ठीक, 46,000 है। ठीक है, फर्नीचर परचेज है 15,000, इन्वेस्टमेंट परचेज है 46,000। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज का 15,000 लिख लिया था, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं, अब आ जाना चाहिए। 5,600, 20,000, 46,000, 14,000, 6,700, 116500। ठीक है, 116500। ठीक, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्मल सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो योर क्वेश्चन नंबर 19 इज कंप्लीटेड।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चन लगाएंगे, कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे और ये भी बहुत इजी है और इसी तरीके से होगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।